Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Governmental Guru. Today, I will discuss the last part of KVS principal exam related to the administrative part, and exam was conducted on 8th February 2023. Today, I will discuss question number 76 to 100, but really in question, basically in KVS examination, it was question ID 126 to 150. It is the last part. Already I have discussed 75 questions. So today I will discuss the last part. Please subscribe my channel, like my channel and share my channel so that you can get notification for my quality videos in subsequent time. You see my WhatsApp number 8327782034. So if you need PDF in different parts related to the administrative part, so you contact with me in this WhatsApp number. Also my Telegram channel link is there. In every video you see the my Telegram link is there. So you join my Telegram channel so that you must know about the upcoming videos. So today I will discuss the last part of KVS principal exam was conducted on 8th February 2023. चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76. डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट under Central Goods and Services Act 2017 means which of the following: gross tax, total tax, assessment, minimum tax. So determination of tax liability it is assessment, not gross, not total tax, not minimum tax, it is assessment. Okay, it is clearly mentioned. So tax liability means it is a tax burden, okay, basically imposed on the producers and sellers. Okay, so they basically assess, it is related to the assessment of tax. So answer is option 3, right? So question number 77. The value of supply of goods shall not include, not के underline कर दिया, shall not include which of the following: any taxes, duties, etc., incidental expenses, discount allowed before or at the time of supply, interest, late fee or penalty. You see the third part, the value of supply of goods means discount allowed before, वो तो include नहीं होगा, और एनी टाइप ऑफ डिस्काउंट सपोज अलाउड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वो भी वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि डिस्काउंट के बाद जो भी डिस्काउंट है चाहे बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, उसको आप डिडक्ट कर दो, उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे द सप्लाई ऑफ गुड्स ना, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. सो वैल्यू मीन्स इट मीन्स एनी टाइप ऑफ डिस्काउंट is there before and instantly at the time of supply, both must be excluded ना. So shall not include पूछा है तो ऑप्शन इज 3, ये इंक्लूड नहीं है. और एनी टैक्सेस, ड्यूटीज सप्लाई में, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूड है, एनी इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी ये इंक्लूड है, राइट? तो आंसर इज ऑप्शन 3. चलो क्वेश्चन नंबर 78. Interest earned on contribution to provident fund set up by the central government in excess of how much amount will be taxable, subject to the condition that no contribution is made by the employer. Only आप किसका contribution लेना है? Only employees का. आप देखिए, यदि आपका contribution more than 5 लाख से, ओके, जो 5 लाख के अबव जो होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा. समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल मैं देता हूं. सपोज आपका जो ओनली एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन यहां पर 5.5 लाख है, तो 5 लाख से कितना एक्सेस है? 50,000. सो 50,000 के ऊपर, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा. ओके, यहां पर जो आंसर है ऑप्शन 4 है. वही दिया है, इंटरेस्ट अर्न ऑन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सेस ऑफ हाउ मच अमाउंट, इन एक्सेस ऑफ हाउ मच अमाउंट अभी बता दिया. तो एक्सेस मीन्स मोर देन 5 लाख. ओके, मोर देन 5 लाख. सपोज द कंसर्न एम्प्लॉई
डिपॉजिटेड 5.5 लाख, सो मोर देन 5 लाख इट इज 50,000, सो 50,000 के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, 50,000 के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, राइट। यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 है। और ये जो सेक्शन में बता देता हूँ, आप इनकम टैक्स का सेक्शन 10, 11 एंड 12 देख लीजिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 79, deductions on account of which of the following are not available to a government servant, are not available to a government servant who opts to compute his tax on income under section 115 BSc. it is the new default tax regime, new tax regime। अभी ये जो बजट में 2023-24 बजट में क्लियरली मेंशन है, जो भी चेंजेस हुआ है वो इसी में चेंज हुआ है, 115 BSc, इट इज द न्यू टैक्स रिजाइम और डिफॉल्ट, ओके, टैक्स रिजाइम। यही है न्यू, एक ओल्ड है जो ओल्ड में उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। ये न्यू टैक्स रिजाइम के ऊपर मैं थोड़ा बता देता हूँ। उसमें जो न्यू टैक्स रिजाइम में कोई भी डिडक्शंस नहीं है, ओनली आपको याद रखना है जो एनपीएस में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, एनपीएस में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, जो मैनेजमेंट शेयर है 80CCD2, ये डिडक्ट होगा, ये एग्जेम्प्ट होगा, राइट। इसमें जो गवर्नमेंट अभी जो दे रहा है एनपीएस में, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 14% बेसिक पे प्लस डीए का, तो वो 80CCD2 है, क्योंकि जो एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन है वो 80CCD1 है और वो 80C में आ जाता है, उसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है, इसमें कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है। और याद रखिए जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है 80CCD2 में ये एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। और एक है, पहले क्या था इसी में जो न्यू टैक्स रिजाइम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 नहीं था, ओल्ड में है, तो अभी इंक्लूड कर दिया गया। ये जो बजट 2023-24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन है अप टू 50,000, ओके, जैसे ओल्ड टैक्स रिजाइम में है अभी न्यू में इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, ठीक है। और आपका इनकम लेस देन 7 लाख होगा, ठीक है। आपका इनकम टैक्सेबल इनकम लेस देन 7 लाख, टैक्सेबल इनकम यहां पर मैं लिख देता हूं, आपका टैक्सेबल इनकम लेस देन 7 लाख होगा सभी डिडक्शन के बाद। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 डिडक्ट हो गया, देन गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में वो डिडक्ट हो गया, तो आपका टैक्सेबल इनकम जो 7 लाख लेस देन 7 लाख होगा, तब आपको कोई टैक्स देना नहीं है, क्योंकि 7 लाख तक इट मीन्स अभी जो रिबेट है इसमें 25,000 रिबेट है, क्योंकि आप देख लीजिए, मैं एक स्लैब बता देता हूं आपको, इसमें अप टू 3 लाख नील है, ये न्यू टैक्स रिजाइम इसी के ऊपर बता रहा हूँ 115 BSc, अप टू 3 लाख नील है, देन 3 लाख टू 6 लाख 5% है जो स्लैब में, 6 लाख टू 9 लाख एवरी गैप 3 लाख जो इंटरवल रहेगा इसमें 10% है, 9 टू 12 लाख ये 15% है, देन 12 टू 15 लाख, ठीक है, ये 20% है, और मोर देन 15 लाख ये 30% स्लैब में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें यदि आपका टैक्सेबल इनकम लेस देन 7 लाख है, आपका टैक्सेबल इनकम यहां पर मैं लिख देता हूं, आपका टैक्सेबल इनकम, ठीक है, लेस देन 7 सभी डिडक्शन के बाद, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका ग्रॉस इनकम से डिडक्ट हो गया, जो एनपीएस में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है 80CCD2 वो भी डिडक्ट हो गया। उसके बाद होता है यदि आपका टैक्सेबल इनकम लेस देन 7 लाख है, तो अंडर सेक्शन 87A आपको रिबेट मिलता है, तो इसी में आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, तो अप टू 7 लाख तक आप कैलकुलेट कर लीजिए तो इतना रिबेट मिलेगा, ओके। लेस देन 7 लाख होगा टैक्सेबल इनकम तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो रिबेट आप याद रखिए 25,000। और ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्या था, जो ये रिबेट था 5 लाख तक, जब टैक्स लेस देन आपका टैक्सेबल इनकम लेस देन 5 लाख होगा तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ता था, और वहां पर रिबेट था 12,500, नहीं की। तो ये चीज इसमें एक्चुअली
ये दिया है व्हिच आर नॉट अवेलेबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु ऑप्ट्स टू कंप्यूट हिज टैक्स ऑन इनकम अंडर सेक्शन, ये न्यू टैक्स रिजाइम, यही है डिफॉल्ट रिजाइम जिसको हम बोलते हैं कि डिडक्शंस का बात, ये कोई भी डिडक्शंस नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट ये नहीं है, कंट्रीब्यूशन टू यूनिट ये नहीं है, आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है 80 CCD 1 है, नहीं कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है 80 CCD 1 है, और ये किस में आ जाता है 80C में आता है। ओके 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख डिडक्ट होता था, अभी ओल्ड टैक्स रिजाइम में है, मगर इसमें नहीं है, इसमें डिडक्शंस नहीं है कि कोई डोनेशंस चैरिटेबल पर्पजेस जो 80G में था वो डिडक्शन होता था, इसमें डिडक्शन नहीं होगा, कोई भी डिडक्शन इसमें जो दिया है 4 ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 आंसर है। अभी एक टैक्स के ऊपर लाएंगे, अभी एक वीडियो और एक आगे में हम एक वीडियो लाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 80, डोनेशन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन फ्रॉम टोटल टैक्सेबल इनकम। जैसे ये जो अभी ओल्ड टैक्स रिजाइम है, मैं यहाँ पर लिख दिया ओल्ड टैक्स रिजाइम में, आप बताइए कि जो 80G है वो रिलेटेड टू द डोनेशन से सेक्शन ना, तो इसमें किसमें 100% डिडक्शन है, आप डोनेट करोगे तो 100% डिडक्शन होगा। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट नहीं है, राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं, ओके क्लियर गंगा फंड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है आंसर है। जहां पर भी नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ये सब मेंशन है, उसके लिए डिडक्शन नहीं है, मगर क्लियर गंगा फंड आप डोनेट कर रहे हो तो 100% डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 80G, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 81, what is the total income up to which an assessee shall be entitled to a deduction of an amount equal to 100% income tax और ₹12,000 which over is less। अभी मैं बताया था, जैसे अभी भी ओल्ड टैक्स रिजाइम में है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में है कि आपका टैक्सेबल इनकम, आपका सभी डिडक्शंस होने के बाद, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजाइम में सभी डिडक्शंस है, सभी डिडक्शंस होने के बाद जिस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना है वही टैक्सेबल इनकम है। तो टैक्सेबल इनकम यदि लेस देन 5 लाख होगा सभी डिडक्शंस के बाद, जैसे 80C में 1.5 लाख हो गया, एनपीएस में जो गवर्नमेंट से यार 80 CCD 2 में जो भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट किया वो भी डिडक्ट हो गया, होम लोन सेक्शन 24C में वो डिडक्ट हो गया, कि एजुकेशन लोन लिया है तो 80 में वो डिडक्ट हो गया। तो सभी डिडक्शंस के बाद एक्चुअली जिस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा उसको टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। ये लेस देन 5 लाख होगा, सभी डिडक्शंस के बाद आपका जो टैक्सेबल इनकम लेस देन 5 लाख होगा तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो रिबेट है अंडर सेक्शन राइट 87A रिबेट सेक्शन है, यहाँ पर रिबेट आपको कितना मिल जाएगा, 12,500 तक रिबेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा, क्योंकि फास्ट 2.5 लाख के ऊपर आपका टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, मगर 2.5 लाख टू 5 लाख ये 5% है, इसका 5% आप देख लीजिए, ये जो 2.5 लाख है 2.5 लाख उसके ऊपर 5% कितना है 12,500, तो ये रिबेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट है, राइट। चलो 82 क्वेश्चन नंबर, if the assessee has taken any loan from any financial institution for purpose of higher education, okay, of his children, the amount of repayment of interest made during the year can be deducted till the loan is cleared or for। तो आपको मैं अभी बताया था कि आप देखिए अंडर सेक्शन 80E में एजुकेशनल लोन के ऊपर है, यदि पेरेंट उसका चाइल्ड के लिए एजुकेशनल लोन लिया हायर एजुकेशन के लिए, तो वहां पर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है, मगर कितना दिन तक एग्जेम्प्ट होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है 8 years व्हिच एवर इज लेस, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा एजुकेशन लोन के ऊपर वो एग्जेम्प्ट होगा, और जो ड्यूरेशन होगा 8 years व्हिच एवर इज लेस, और एजुकेशन लोन का जो सेक्शन है 80E है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे, Who among the following is not included in the terms family
फॉर द पर्पज ऑफ टीए रूल्स। इसमें मैं थोड़ा बता देता हूँ कि आपका इसमें स्टेप फादर इंक्लूड नहीं है। ओके, इसमें क्या क्या है, स्पाउस केस में, ठीक है, स्पाउस केस में डिपेंडेंट नहीं है, याद रखिए, मैं कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ। स्पाउस केस में डिपेंडेंट नहीं है, रिजाइडिंग विथ है, नेसेसरी है, रिजाइडिंग विथ है। और चाइल्ड केस में आपका जो चिल्ड्रेन, आप जो ट्रैवलिंग अलाउंस 2 चाइल्ड के लिए, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए आप ले सकते हो, चाहे अडॉप्टेड चाइल्ड और लीगल चाइल्ड के लिए, ठीक है। और आपका बेसिकली फैमिलीज जो नेसेसरी कंडीशन है रिजाइडिंग विथ, नेसेसरी कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशन रिजाइडिंग विथ रहेगा, मगर ये जो डिपेंडेंट कंडीशन ओनली स्पाउस केस में नहीं रहेगा। डिपेंडेंट कंडीशन स्पाउस केस में नहीं रहेगा, मगर अदर फैमिली मेंबर्स के लिए रहेगा। तो ये 2 चीज याद रखना है, रिजाइडिंग विथ, डिपेंडेंट। अदर क्या है, जैसे आपका 2 चिल्ड्रन हो गए और सपोज आपका डॉटर का मैरिज हो गया, मगर मैरिज के बाद वो डाइवोर्स्ड कि अबैंडन, इस केस में वो आपके ऊपर डिपेंड किया कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर, वो भी इंक्लूड होगा। डिपेंडेंट रिजाइडिंग विथ मस्ट। और आपका बेसिकली अनमैरिड सिस्टर, और सिस्टर का मैरिज हुआ था मगर वो सपोज विडोड हो गया कि वो अबैंडन उसको कर दिया गया, ठीक है, तो सपोज वो डाइवोर्स है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो भी इंक्लूड होगा। माइनर ब्रदर, मेजर ब्रदर इंक्लूड नहीं होगा, स्टेप फादर, मेजर ब्रदर ये सब इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर जो भी मैं बता दिया, स्टेप मदर इंक्लूड होगा, स्टेप फादर इंक्लूड नहीं होगा। स्टेप मदर इंक्लूड होगा आपका पेरेंट्स, स्टेप मदर, मगर स्टेप फादर इंक्लूड नहीं होगा, मेजर ब्रदर्स इंक्लूड नहीं होगा। और जो भी चिल्ड्रेन, आपका डाइवोर्स डॉटर, आपका अनमैरिड सिस्टर की डाइवोर्स्ड सिस्टर, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, डिपेंडेंट रहेगा और रिजाइडिंग विथ रहेगा, ठीक है। ये दोनों को याद रखना है। यहां पर जो आंसर है ऑप्शन 4 है, राइट। माइनर ब्रदर इंक्लूड है, मेजर ब्रदर इंक्लूड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 84 को चलेंगे। In terms of the provisions contained under SR Supplementary Rule 25, the fixed conveyance allowance, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, सप्लीमेंट्री रूल 25 में एक कन्वेयंस अलाउंस है, shall be granted at a time for a period not exceeding ऑप्शंस गिवन 8 years, 6 years, 4 years, 2 years। एक्चुअली ऑप्शन 4 करेक्ट है। जो फिक्स्ड कन्वेयंस अलाउंस होगा उसका जो ड्यूरेशन होगा वो 2 years से ज्यादा नहीं होगा। ओके, एक कन्वेयंस अलाउंस मिलता है, रेगुलरली आप अप एंड डाउन कर रहे हो और एक कन्वेयंस अलाउंस मिल रहा है, और वो एक्चुअली जो आपको ग्रांटेड होगा कितना होगा, अप टू 2 years, वो 2 years एक्सीड नहीं करेगा। और ये सर 25 सप्लीमेंट्री रूल 25 में मेंशन है, फिक्स्ड कन्वेयंस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 85, अगेन CCS TA रूल्स, सेंट्रल सिविल सर्विसेज ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स। ऑप्शंस गिवन, करेक्ट आपको चूज करना है। डेली अलाउंस इज ए काइंड ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस, ओके, ये करेक्ट है। परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस मे नॉट बी ड्रॉन ड्यूरिंग लीव और टेम्पोररी ट्रांसफर। इस केस में आपको परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस में, लीव टेम्पोररी ट्रांसफर में आपको परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, ये करेक्ट है। जो लीव है, आप लीव लिया कि आप टेम्पोररी ट्रांसफर में जा रहे हो अप टू 180 days टूर और ट्रेनिंग में, आपको परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस आप अवेल नहीं कर सकते, ठीक है, ये दोनों करेक्ट है। थर्ड वन देखेंगे, ट्रैवल एंटाइटलमेंट फॉर ट्रेन जर्नी ऑन टूर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिसिप्ट ऑफ पे लेवल 11 ऑफ द पे मैट्रिक्स इज SC फर्स्ट क्लास। आपको याद रखता हूं कि जो ट्रेन जर्नी के ऊपर पूछा है ये गलत कैसे है, आपको याद होगा 6 to 11 इकोनॉमी क्लास इन प्लेन, इकोनॉमी क्लास इन प्लेन, एंड ट्रेन में सेकंड क्लास, ट्रेन में आपको क्या मिलेगा, सेकंड क्लास। ये 6 to 11 है, और 12 to 13 है पे लेवल, 12 to 13 है, इसमें भी आपको रहेगा इकोनॉमिक क्लास रहेगा, मगर फर्स्ट क्लास रहेगा। ट्रेन में फर्स्ट क्लास रहेगा और प्लेन में इकोनॉमिक क्लास रहेगा, ठीक है। और जो पे लेवल है 14 एंड अबोव, इसमें जो प्लेन में
बेसिकली बिजनेस क्लास और क्लब क्लास का रहेगा। प्लेन में बिजनेस और क्लब क्लास का रहेगा और फर्स्ट क्लास ट्रेन रहेगा। तो 6 to 11 आपको याद रखना है, जो पे लेवल 6 to 11। इकोनॉमी आपका जो रहेगा क्लास रहेगा बेसिकली प्लेन में, ठीक है। तो वहां पर आपको इकोनॉमी क्लास रहेगा और आपको सेकंड क्लास ट्रेन फैसिलिटीज मिलेगा। मगर 12-13 A में आपको फर्स्ट क्लास ट्रेन फैसिलिटी मिलेगा। एंड आपका जो एयर जर्नी होगा वो इकोनॉमी क्लास होगा। मगर यदि आप पे लेवल 14 एंड अबव देखेंगे तो जो प्लेन जर्नी रहेगा वो क्लब और बिजनेस क्लास का रहेगा और ट्रेन फैसिलिटी वही फर्स्ट क्लास रहेगा। ये थोड़ा चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये करेक्ट है, अभी मैं बता दिया, ये दोनों करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। और डी जो है, देखिए ऑप्शन डी, ए गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल ऑन टूर left his place of halt on Sundays and holidays in the morning and returned the same evening would not be entitled to daily allowance during such period। नहीं, यहाँ पर डेली अलाउंस मिलेगा। जैसे आप मॉर्निंग में आप जो जहाँ पर आपका हाल्ट प्लेस है, ये देखिए दे दीजिए, हाल्ट प्लेस में आप मॉर्निंग में छोड़ दिए मगर इवनिंग में आ गए, तो ये यहाँ पर जो रूल है आप देखिए सप्लीमेंट्री रूल में है क्लियरली, यदि आप एक पार्ट ऑफ द पीरियड, एक डे में एक पार्ट ऑफ द पीरियड हॉल्ट स्टेशन में आप प्रेजेंट हो तो आपको डेली अलाउंस मिलेगा। तो वही आप मॉर्निंग में जो हॉल्ट स्टेशन है आप उसको छोड़ दिया, जस्ट यू लेफ्ट द हॉल्ट स्टेशन इन मॉर्निंग बट इन इवनिंग यू रिटर्न बैक। सो रूल क्या है, सप्लीमेंट्री रूल क्या बोल रहा है कि यदि इन हॉल्ट स्टेशन इफ यू स्पेंड पार्ट ऑफ द टाइम देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर डेली अलाउंस। यहाँ पर बोल रहा है कि डेली अलाउंस नहीं मिलेगा, वो तो इवनिंग में रिटर्न आ गया ना वही हॉल्ट प्लेस को। तो ये दोनों गलत है, ओके। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। ए ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम शैल स्टैंड फॉरफिटेड इफ नॉट सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर बिकमिंग ड्यू। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप ट्रैवलिंग अलाउंस को जो सबमिट करोगे रिइंबर्समेंट के लिए विद इन 60 डेज, जैसे आपका रिटर्न जर्नी खत्म हो गया तो खत्म होने के बाद आप काउंट कर लीजिए 60 डेज के अंदर आपका जो टीए क्लेम है आपको सबमिट करना पड़ेगा। आप टीए क्लेम को सबमिट नहीं कर रहे हो तो 60 डेज के अंदर तो वो फॉरफिट, ऑटोमेटिकली फॉरफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है करेक्ट है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट वुड बी द एडमिसिबिलिटी ऑफ सीटीजी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट एंड पैकिंग ग्रांट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर्ड विद इन द सेम स्टेशन, दे दिया विद इन द सेम स्टेशन एंड रेसिडेंस। आपको याद रखना है कि सेम स्टेशन चेंज ऑफ रेसिडेंस। तो बेसिकली सीटीजी नॉर्मल में 80% ऑफ बेसिक पे मिलता है, ओनली बेसिक पे, डीए इंक्लूड नहीं होगा, ओके। मगर आपका सेम स्टेशन में होगा तो 1/3 ऑफ इसका हो जाएगा 80% ऑफ बेसिक पे। मगर रेसिडेंस चेंज होगा, सेम स्टेशन में आपका ट्रांसफर होगा मगर रेसिडेंस चेंज होगा। रेसिडेंस चेंज नहीं होगा तो आपको सीटीजी नहीं मिलेगा, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट नहीं मिलेगा। तो मैं क्या बोलता हूं, सेम स्टेशन, राइट, रेसिडेंस चेंज होगा तो आपको 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे जो सीटीजी होगा। और नॉर्मली आपका, और ये जो डिस्टेंस है विद इन 20 किलोमीटर, सेम स्टेशन विद इन 20 किलोमीटर, ठीक है। सपोज आपका ग्रेटर देन 20 किलोमीटर ट्रांसफर हुआ और रेसिडेंस चेंज हुआ तो वहां पर आपको जो सीटीजी मिलेगा 80% ऑफ बेसिक पे मिलेगा, ओके। तो आपको याद रखना है सेम स्टेशन, रेसिडेंस चेंज होगा 1/3 ऑफ 80% ऑफ बीपी। और अदर केस में अदर स्टेशन को आपका ट्रांसफर हो रहा है और रेसिडेंस चेंज हो रहा है तो वहां पर 80% ऑफ बेसिक पे मिलेगा, ठीक है। और यहां पर एक रूल है कि आपको याद रखना है, जैसे आपका जो ट्रांसफर हुआ मोर देन 20 किलोमीटर मगर देयर इज नो चेंज ऑफ रेसिडेंस, नो चेंज ऑफ रेसिडेंस, ये चेंज ऑफ रेसिडेंस। तो चाहे ग्रेटर देन 20 किलोमीटर आपका जो स्टेशन को ट्रांसफर हुआ, आपका ओल्ड स्टेशन से वो मोर देन 20 किलोमीटर है मगर रेसिडेंस
चेंज नहीं हुआ तो आपको सिटीजी नहीं मिलेगा। तो रूल है कि सेम स्टेशन रेसिडेंस चेंज होगा तो सिटीजी 1/3 इक्वल टू 1/3 ऑफ 80% ऑफ लास्ट मंथ्स बेसिक पे। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, क्योंकि सेम स्टेशन है और रेसिडेंस चेंज हो रहा है। यदि सेम स्टेशन अदर स्टेशन में होगा, रेसिडेंस चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका सिटीजी कितना होगा, 80% ऑफ बेसिक पे। ठीक है, इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है। और ये डिस्टेंस को भी याद रखना है, सेम विद इन 20 किलोमीटर, इसको याद रखना है, विद इन 20 किलोमीटर एंड चेंज ऑफ रेसिडेंस। इस केस में आपको 1/3 ऑफ 80% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे मिलेगा। यदि ग्रेटर देन 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से ज्यादा होगा, रेसिडेंस चेंज होगा, तो आपको 80% ऑफ बेसिक पे मिलेगा। और ओनली इस केस में, जैसे आपका ट्रांसफर हो रहा है लाक्षाद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, इसको ट्रांसफर हो रहा है तो आपको 100% जो सिटीजी होगा 100% ऑफ बेसिक पे मिलेगा। राइट, कुछ इंफॉर्मेशन दिया। मेरा जो ट्रैवलिंग अलाउंस का वीडियो है आप देख लीजिए, एमसीक्यूज भी है, ओके, देख लीजिए। 88 in terms of the TA rules, whenever DA increases by 50%, यदि DA 50% बढ़ जाता है तो होटल चार्जेस जो है वो कितना बढ़ जाएगा, 25% हाइक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब DA 50% बढ़ जाएगा, जो होटल चार्जेस है वो कितना बढ़ जाएगा, 25%। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना है। जैसे होटल बेसिकली चार्जेस आप देख लीजिए, क्लियरली दिया गया है, आप टीए रूल में देख लीजिए जो होटल चार्जेस है, तो वही पूछा है, तो वो 25% बढ़ जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। 89 क्वेश्चन नंबर, इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली मेंबर्स द डिपेंडेंसी कंडीशन डज नॉट अप्लाई इन द कंटेस्ट ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन। एलटीसी में स्पाउस केस में डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, स्पाउस केस में डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। अदर मेंबर जो फैमिली मेंबर्स है उस केस में डिपेंडेंसी कंडीशन रहेगा, वो सब डिपेंड करेंगे कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर। ठीक है, मगर स्पाउस जो है डिपेंडेंसी कंडीशन नहीं रहेगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 90, एडवांस ऑन अकाउंट ऑफ एलटीसी मे बी सैंक्शनड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज। जो एलटीसी का एडवांस बेसिकली हेड ऑफ द ऑफिस वो सैंक्शन करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। जो ऑप्शन 3 है करेक्ट है, एलटीसी एडवांस आपको कौन सैंक्शन करेगा, हेड ऑफ ऑफिस। मेरा एलटीसी का वीडियो पढ़ा है, आप देख लीजिए, बहुत अच्छा वीडियो है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, गवर्नमेंट सर्वेंट्स पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन लिविंग देयर फैमिली बिहाइंड एट द ओल्ड हेडक्वार्टर्स। यदि कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट का जो अभी पोस्टेड है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, मगर उसका फैमिली ओल्ड हेडक्वार्टर्स में है, तो एंटायर सर्विस कैरियर में आर एंटाइटल्ड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस कैरियर टू इमरजेंसी पैसेज कंसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ। तो आपको याद रखना है, जैसे कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो अभी पोस्टेड है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, मगर उसका फैमिली जो है वो ओल्ड हेडक्वार्टर में है, तो इमरजेंसी पैसेज कंसेशन जो है, ओके, जो एलटीसी में बेसिकली मेंशन है, ये मेरा एलटीसी वीडियो देखिए, क्लियरली मेंशन है। तो इमरजेंसी पैसेज कंसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 2 एडिशनल ओकेजन्स में, ओके, 2 बार 2 एडिशनल ओकेजन्स दिया है एंटायर सर्विस कैरियर में। 2 एडिशनल ओकेजन्स के लिए इमरजेंसी पैसेज एलटीसी कंसेशन मिलेगा, जो लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा एंटायर सर्विस कैरियर में, एक्स्ट्रा 2 एडिशनल ओकेजन्स मिलेगा, उसको बोलते हैं इमरजेंसी पैसेज कंसेशन। मगर कंडीशन क्या होगा, कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है और उसका फैमिली जो है रिजाइडिंग इन ओल्ड हेडक्वार्टर, तो एंटायर सर्विस कैरियर में एक्स्ट्रा 2 एडिशनल एलटीसी मिलेगा। ठीक है, इसको हम इमरजेंसी पैसेज कंसेशन बोलते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 92, a document maintained for the purpose of account for the receipt transactions containing the particulars of the person who remits the amount to government head of account is called 4 options: claim, challan, payment advice, payment scroll. Answer is 2, it is challan.
ओके, यदि हम कोई भी फंड को गवर्नमेंट अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं वो थ्रू चालान होगा, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। 93, पेंशन टू द इंडियन पेंशनर्स रिजाइडिंग इन नेपाल शैल बी डिस्पर्स्ड थ्रू। जो इंडियन पेंशनर है वो नेपाल में रहता है, तो उसका पेंशन कौन डिस्पर्स करेगा? 4 ऑप्शंस, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस PAO, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एम्बासी ऑफ इंडिया काठमांडू नेपाल, ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 होगा, आपको याद रखना है, जो हमारा एक पेंशनर है वो नेपाल में रिजाइड करता है, तो उसको पेंशन कौन देगा? जो हमारा एम्बासी ऑफ इंडिया है, इंडिया का जो एम्बासी बेसिकली जो हमारा एम्बासी नेपाल में है, ओके, तो वहां पर हमारा जो एम्बासी है वो ही रिलीज करेगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, इन व्हिच फॉर्म द अकाउंट्स ऑफ कमर्शियल और क्वासी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रिपेयर्ड। तो बेसिकली ये जो भी अकाउंट्स प्रोफॉर्मा बेसिस में, नॉट कैश एक्रूअल कॉस्ट प्रोफॉर्मा बेसिस में जो ओके फॉर्म द अकाउंट्स ऑफ कमर्शियल और क्वासी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रिपेयर्ड, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 95, in terms of the sexual harassment of women at workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, the presiding officer and every member of the internal complaint shall hold office from the date of the nomination for a period sorry, not exceeding। जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है उसका चेयरमैन जो होगा सीनियर मोस्ट फीमेल एम्प्लॉय होगा। ठीक है, सीनियर मोस्ट फीमेल एम्प्लॉय होगा चेयरमैन। उसके अंडर में बेसिकली 2 एम्प्लॉइज, वो ऑर्गेनाइजेशन का 2 एम्प्लॉइज, दोज आर फैमिलियर विथ सेक्सुअल हरासमेंट, वो भी मेंबर्स रहेंगे। और 1 मेंबर एक्चुअली चूजन फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स बेसिकली जैसे कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है जो फैमिलियर विथ सेक्सुअल हरासमेंट, तो एटलीस्ट 4 मेंबर्स। कितना मेंबर्स? एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 4 मेंबर्स होते हैं जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसका जो चेयरमैन है होगा तो बेसिकली जो सीनियर मोस्ट फीमेल एम्प्लॉय वो चेयरमैन होगा। सो हम 2 मेंबर्स चूज करेंगे, बेसिकली 2 एम्प्लॉइज, दोज आर वेरी फैमिलियर विथ सेक्सुअल हरासमेंट, और 1 मेंबर आउटसाइड से हम चूज करेंगे जो बेसिकली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट है, मिनिमम 4 मेंबर्स, और उनका जो पीरियड रहता है 3 इयर्स तक रहता है, और ये जो काउंट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नॉमिनेशन। ओके, जब उनका नॉमिनेट होता है उसी से हम काउंट करेंगे 3 इयर्स, फिर 3 इयर्स के बाद वो मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पोस्ट एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, और एक सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर है, आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया वीडियो है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 करेक्ट है। 96, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो पोक्सो है एक्ट 2012 फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये चेंज हुआ है, आप देखिए 2019 में ये मॉडिफिकेशन हुआ है। जो पोक्सो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, तो उसमें जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए जो मिनिमम पनिशमेंट होगा वो 10 इयर्स होगा। आप मेरा एक पोक्सो एक्ट वीडियो पढ़ा है, आप देख लीजिए, जो मॉडिफिकेशन हुआ 2019 में, पूरा बढ़िया रकम से मैं बॉक्स करके वहां पर दे दिया कि कितना क्या पनिशमेंट होगा। मगर यहाँ पर जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए जो मिनिमम पनिशमेंट होगा वो 10 इयर्स होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 97, the central government has announced direct benefit DBT, direct benefit transfer under selected schemes in selected district across the country through PFMS, Public Finance Management System। मेरा एक वीडियो है, आप देख लीजिए PFMS के ऊपर, फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट्स ड्यू टू बेनिफिशियरीज डायरेक्टली टू देयर आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो आपको भी मालूम होगा, जो भी अभी गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी पेमेंट हो रहा है वो PFMS माध्यम से हो रहा है, और PFMS जो बहुत ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबिलिटी है,
और कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिस वो चेक भी करेगा कि कितना अमाउंट रिलीज हुआ था और कितना अमाउंट उससे खर्च हुआ है। तो बेसिकली क्या होगा, टाइम टू टाइम हम चेक कर सकते हैं, और जो भी बेनिफिशियरीज है उनका आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट एक्चुअली उसको प्रोसेस किया जाएगा और डायरेक्टली उनका अकाउंट में मनी ट्रांसफर होगा। नहीं, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी 2013, याद रखना है, 1 जनवरी 2013। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है पीएफएमएस के ऊपर, जो वो बढ़िया रकम से मैं क्लैरिफाई किया, जो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिए। तो ये जो डीबीटी, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, अभी बेनिफिशियरी अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है। आप देखेंगे बहुत योजना में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं मनी को, बेनिफिशियरीज को। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013। ऑप्शन 1 इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 98, ये भी पीएफएमएस के ऊपर क्वेश्चन है। अ पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट स्कीम वाज रोल्ड आउट बाय होम? 4 ऑप्शंस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये नहीं है, सी एंड एजी नहीं है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ए है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग। तो एक्चुअली जो पब्लिक पीएफएमएस है, इट वाज रोल्ड आउट बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट वन, राइट। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गाइडलाइंस। ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। गाइडलाइंस ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, अंडरलाइन में कर दिया। बिल्डिंग नीड्स टू बी सर्टिफाइड एज सेफ फॉर हाउसिंग द स्टूडेंट्स बाय लोकल अथॉरिटीज, ये करेक्ट है। द नर्सरी एंड एलिमेंटरी स्कूल्स शुड बी हाउस्ड ऑन ग्राउंड फ्लोर। जो भी नर्सरी सेक्शन है, ये जो एलिमेंटरी सेक्शन स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 8 है, वो बेसिकली नर्सरी टू स्टैंडर्ड 8 वो ग्राउंड फ्लोर में रहेगा, ये भी करेक्ट है। ऑल यूटेंसिल्स शुड बी प्लेस्ड वेल अवे फ्रॉम द वॉल्स टू अलाउ प्रॉपर इंस्पेक्शन, ये नहीं है। यूटेंसिल्स के, ऑल यूटेंसिल्स शुड बी प्लेस्ड वेल अवे फ्रॉम द वॉल्स टू अलाउ प्रॉपर इंस्पेक्शन, ये नहीं है, ये गलत है। ये इसमें एक रूल है कि आपका जो बेसिक हेवी आर्टिकल्स वॉल के पास है, so some heavy articles are there, it is lying with the wall, then sometimes it might be falling on the students. So for this reason we must actually keep aside all these things from the walls. मगर यहाँ पर यूटेंसिल्स दे दिया कि वॉल साइड में कुछ यूटेंसिल्स है, हम उसको साइड कर देंगे क्योंकि इंस्पेक्शन होगा, ये गलत है, ये नहीं है। ऐसा कुछ हेवी आर्टिकल्स है जैसे अलमीराज है, वो कभी बच्चों के ऊपर पड़ सकता है, तो उसको हम अलग कर देंगे क्योंकि वो वॉल के साइड में था, वो हो सकता है कुछ हादसा, ये गलत है। यूटेंसिल्स ये गलत है। Staircases shall adhere to provisions specified in the National Building Code of India 2005 to ensure quick evacuation of children. यदि कुछ एनी टाइप ऑफ डिजास्टर होता है तो हम इजीली एवैक्यूएट कर पाएंगे चाइल्ड को। ओके, जो नेशनल बिल्डिंग कोड, इसको याद रखिए, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया एक्ट 2005। तो जो टिक लगाया वो ऑप्शन एक्चुअली करेक्ट है। Which of the guidelines stated above relate to safety of school building? तो जो करेक्ट है वही लगाया। तो ऑप्शन बेसिकली जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है ए, बी एंड डी है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, राइट। लास्ट क्वेश्चन, द स्कूल और स्कूल मैनेजमेंट शैल अरेंज टू कैरी आउट थ्रू इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल्स एटलीस्ट। जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी है, जो एसएमसी है, वो स्कूल को इंस्पेक्शन करता है, नहीं कि, तो एटलीस्ट वंस इन ए क्वार्टर द स्कूल और स्कूल मैनेजमेंट शैल अरेंज टू कैरी आउट थ्रू इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल्स एटलीस्ट वंस इन ए क्वार्टर। ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो पूरा 100 क्वेश्चंस में डिस्कस कर दिया, ठीक है। ये केवीएस का क्वेश्चन पैटर्न है, थोड़ा चेंज कर दिया था, तो ये 4 पार्ट्स में मैं खत्म कर दिया। वैसे ही आगे में अच्छा वीडियो हम लाएंगे, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। आज उतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।